اردو کے غیور عوام، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج یہاں پہ شاہد خاقان عباسی بھی موجود ہیں اور مریم نواز شریف بھی موجود ہیں، اور میری کمی پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور مجھے بہت اس بات کا خیال آتا ہے کہ مجھے آپ سے ملے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، بہت دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو ملوں، بہت دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے گلے لگاؤں، اور بہت دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا حال معلوم کروں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ حالات ملک کے بہت خراب ہیں۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، اور یہاں پر گلگت بلتستان میں تو بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، لیکن یہ پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، اور مجھے یاد ہے کہ آپ کے لیے الحمدللہ میں نے سب سے بڑا منصوبہ سکردو سے جگلوٹ ہائی وے بنایا، ماشاءاللہ اس کو ہم نے شروع کیا، اور وہ بہت جلد انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا سکردو سے جگلوٹ کا ہائی وے معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ ابھی مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا ابھی تک۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور اگر ہماری حکومت ہوتی ہم اس کو مکمل کر کے جاتے، لیکن انشاءاللہ ہم نے لواری ٹنل کو بھی مکمل کیا، ہم نے بڑے بڑے منصوبوں کو مکمل کیا، انشاءاللہ یہ بھی مکمل ہوگی۔ جگلوٹ سکردو سڑک بھی مکمل ہوگی، اور انشاءاللہ سکردو جو ہے وہ اسلام آباد کی طرح سے ایک خوبصورت شہر بنے گا۔ میں آپ کو بہت سلام کرتا ہوں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں، اللہ پاکستان کو مصیبتوں سے باہر نکالے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ گلگت بلتستان زندہ باد، سکردو زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ملازموں کی اور پاکستان کے جو وفادار ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی۔ پہلا سال آیا کہ یہ تنخواہیں نہیں بڑھی، کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہی نہ رہے آپ کے پاس؟ اس ملک کو عوام اور نواز شریف کے حوالے کر دو، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پھر سے ترقی کی منازل طے کرے گا۔ اور دیکھ لو، فیصلہ تمہارا نہیں چلتا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ اور جب تم اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہو کہ ہم نواز شریف کو مٹا دیں گے، نواز شریف کی سیاست کو ختم کر دیں گے، تو یہ شرک ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف یہ پاور اور یہ طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور آج تمہاری ساری طاقتیں، تمہاری ساری دھاندلیاں، تمہارے سارے انتقام ناکام، تم نے نواز شریف کی آواز بند کی، اللہ تعالیٰ نے آج تمہاری آواز بند کر دی۔ اور پوری دنیا میں اگر ایک ہی آواز گونج رہی ہے تو اس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ اور میرے نوجوانوں، میرے بچوں، آپ میرے دل کے بہت قریب ہو۔ اب میں گلگت بلتستان کے اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور آج اس جلسے کے تھرو پاکستان کے اندر پھیلے طول و عرض پر سارے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ
अपने हक के लिए अब खड़े हो जाओ, अपने हक को मत छोड़ना। हुकूमतें लाने और वापस ले जाने का, हुकूमतें मुंतखब करने का और उनको घर भेजने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खल्के खुदा के पास है। जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे से पिछली नस्लों ने सह लिया, वो सह लिया। आज अपनी बहन मरियम नवाज के साथ वादा करो कि अब अपने हकूक पे डाका डालने की इजाजत किसी को नहीं दोगे। नहीं है ये हक आपका, आपको मिलना चाहिए, इस हक से भी ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, जब ये हक आपको भीख की तरह दिया जाए तो इनकार कर देना। खुददार नौजवान बनना, अपना हक को सर उठा के लेना। ये मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल नहीं है कि वो फेसबुक पर कुछ लिखे या वो ट्विटर पे कुछ लिखे या वो कोई बात करे और रात को वीगो डाले आके उनको उठा के ले जाएं। ये हम नहीं होने देंगे। बोलो, ये हम नहीं होने देंगे। अब हम इस चीज की, मेरे नौजवानों, वादा करो कि चाहे जिसको भी वोट दोगे, जो आपके वोट से आएगा, वो किसी इकामे पे फिर नहीं निकाला जाएगा। और उसके लिए आवाज उठाओगे, अपने नुमाइंदे जो आपके खिदमतगार हैं उनके लिए खड़े होगे, उनकी इज्जत की, उनकी नामूस की और अपने वोट की पर्ची की हिफाजत करोगे। क्योंकि जिसकी अपनी कोई इज्जत ना हो, जो खुद कशकोल उठा के फिरता हो, जिसको लाने वाला कोई और हो, जिसको चलाने वाला कोई और हो, जो अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए खड़ा ना हो सके, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा? मुझे इस चीज का जवाब दो। नून के 9 लोगों को इन्होंने तोड़ लिया, तो मेरे साथ ये वादा करो कि लोगों को वोट नहीं दोगे, क्योंकि लोटों की जगह बाथरूम्स में है। लोटों की जगह किधर है? सा दबाव बर्दाश्त ना कर सके, जो सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड का जरा सा दबाव बर्दाश्त ना कर सके, वो आपके लिए क्या दबाव, आपके लिए क्या खड़ा होगा? जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा? और जो दबाव में आके आपके वोट की हुर्मत को पांव के नीचे कुचल कर चला जाए, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा? वो आपकी क्या खिदमत करेगा? तो लोटों को रखेंगे बाथरूम्स में, उनकी जगह बाथरूम्स में, उनकी जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। तो वोटों, ये जो लोटे हो गए ना, इनको निशाने इबरत बना के आना। कोई इनको वोट मत डाले ताकि इनको पता चले कि अवामी नुमाइंदा होना कितना बड़ा एक जिम्मेदारी है, कितनी वो एक ऐसी जिम्मेदारी है कि जब आप उसका लिहाज नहीं करते तो फिर आप आपको वोट लेने का कोई हक नहीं है। आपको चुप करके मुंह छुपा के अपने घरों में बैठना चाहिए। और मैं नवाज शरीफ साहब से भी और अपनी जमात से भी, मेरे बड़े शायद खाकान अब्बासी साहब और परवेज रशीद साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, बलजीज ताहिर साहब तशरीफ फरमाए, मैं हाथ जोड़कर अपनी जमात से भी ये अर्ज करूंगी कि आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं देना। और ये जो आपके सामने मेरे बुजुर्ग वफा का पहाड़, तो मैंने कल ये लोटे जब अपने हलकों में जाएं, इनको ये एहसास दिलाओ कि ये कितना बड़ा जुर्म करके आए हैं। तो अब आ जाओ गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के ऊपर। तो गिलगित बल्तिस्तान का एक मदारी आया था अभी चंद दिन पहले, एक झूठा ख्वाब दिखा के चला गया। ये उसको एहसास नहीं हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सब जानते हैं कि तुम कौन हो और तुमने कितने वादे निभाए हैं। ख्वाब दिखाया 1 करोड़ नौकरियों का, और ताबीर क्या है? ताबीर है कि 2.5 साल में 1.5 करोड़ लोग और खानदान बेरोजगार हो गए। गिरवी रखाया। आप दिखाया था
कि किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पूरी दुनिया में हमें भिखारी बना दिया। ख्वाब दिखाया था कि 100 दिनों में तब्दीली लाऊंगा, और ताबीर ये है कि फिर 1 साल मोहलत मांगी। अब कहता है मेरे पास कोई जादू ना, इसका बस चलता है। इसका बस अगर चलता है तो गरीब अवाम के चूल्हे बुझाने पे चलता है। इसका बस अगर चलता है तो महंगाई पर चलता है। इसका बस अगर चलता है तो अवाम का रोजगार छीनने पे चलता है। इसका बस अगर चलता है तो तोड़ जोड़ में चलता है। इसका बस अगर चलता है तो जूते पॉलिश करने में चलता है। जो इंसान अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो आपकी इज्जत कभी नहीं करवा सकता। और खुद चीनी पर, आटे पर सब्सिडी देकर पहले दोस्तों को नवाजता है, फिर खुद ही कमीशन बनाता है। और आटा चीनी चोरों के जो जेबों में पैसे गए हैं ना, वो उन लोगों की जेबों में गए जो बनी गाला में इमरान खान के घरों का खर्चा उठाते हैं। खुद ही महंगाई करता है और फिर महंगाई का नोटिस लेता है, और जब महंगाई का नोटिस लेता है तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती है। अब तो लोग ये कहने लगे कि खुदा का वास्ता है तुम नोटिस ना लिया करो। और अब एक बात कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाऊंगा। ये इज्जत तुम्हारे नसीब में नहीं लिखी। इंशाल्लाह अगर गिलगित बल्तिस्तान को कोई सूबा बनाएगा, इंशाल्लाह उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। और ये बात किसी ने नहीं की, ये बात आज मैं कर रही हूँ कि अगर वो सूबा बनाएगा इंशाल्लाह, जो कि वो बनाएगा आप सबके इंशाल्लाह ताला आपकी मदद के साथ, अल्लाह की मदद के साथ, तो वो ये नहीं करेगा कि एनएससी अवार्ड जो पैसे हैं वो उनमें कटौती करके आपको दे दे। जब सूबा बनेगा तो अभी जो आपको मिल रहा है इंशाल्लाह ताला उससे कम नहीं, उससे ज्यादा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और मैं भी ये चाहती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के मेरे अवाम को खुद मुख्तारी मिले। आपको ना सिर्फ सूबा बने, आपको खुद मुख्तारी मिले। और गवर्नर जो है, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान भी बाहर से लाकर आपको पर मुसल्लत ना किया जाए, आप ही का नुमाइंदा हो इंशाअल्लाह ताला। और ये जो कहते हैं ना एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, आज मैं ये ऐलान करती हूँ और गिलगित बल्तिस्तान को ये बताती हूँ कि अब ये एनआरओ हमसे मांग रहा है, लेकिन सिलेक्टेड अब तुम्हें नवाज शरीफ इंशाअल्लाह और मुस्लिम लीग नून तुम्हें एनआरओ नहीं देगी, क्योंकि पहले तुम सिलेक्टेड थे, अब तुम रिजेक्टेड हो। कहो इमरान खान तुम्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। और आखिर में पूरे दिल से मेरे साथ वादा करो कि आप 15 तारीख को इंशाअल्लाह अपनी भलाई और अपनी खुशहाली पे ठप्पा लगाते हो। जब आप शेर पे ठप्पा लगाते हो तो फिर कीमतें, आपके इस्तेमाल की चीजों की कीमतें नीचे आती हैं। जब आप शेर पे ठप्पा लगाते हो तो यहाँ सड़कें बनती हैं। जब आप शेर पे ठप्पा लगाते हो, ठप्पे पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा, और जोर से। सब बोलो। और अगर आप ये चाहते हो कि गिलगित बल्तिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करे और आगे जाए और उसको उसका वो हक मिले जो आप चाहते हो, तो शेर पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद और आबाद रखे।
اللہ تعالیٰ جلدی محمد نواز شریف کو صحت دے کے پاکستان واپس لائیں، وہ آپ سب کو سنبھالے۔ پاکستان زندہ باد، سکردو زندہ باد، اور میری وہ جو خواتین یہاں آئی ہوئی ہیں زندہ باد۔ سکردو کے نوجوان، بزرگ، بھائی، بیٹے، بچے، مائیں، بیٹیاں زندہ باد۔ تابان صاحب زندہ باد، مسلم لیگ نون زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔